ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାର ବସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କହେ ଲଗାଇ ମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଦିଗକୁ ଆସିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛେ। ଏ ଜଣେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସବୁରେ ପଡ଼େ ସାଧୁସଙ୍ଗ। हरे कृष्ण प्रभु अनुरोध करे सेवा कीर्तन करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वामिने नमिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पचाने ये विशेष शून्यवादी कष्टदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुर्वच पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, especially to Gunana Prabhu and other devotees, Govinda Prabhu. So I am very much thankful to all the devotees and for coming here. Namaste project देथिबा जोगु एवं हमको साधु संगर opportunity देथिबा जोगु. Also I am very thankful to Nitesh Prabhu. He is the inspiration for this program today and because after long gap बहुत दिन के बाद में वो जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा के लिए आए थे और उनका जो है बहुत कुछ इंस्पिरेशन हम लोग को मिला। We wanted to have a devotee association, so that is the basis of today's devotee association. In addition to that, जो हमें प्रभु हम लोग को सबसे गाइड कर रहे हैं कि हम लोग बीच में मिलना चाहिए एंड बिना साधु संग में हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं प्रीवियस स्पीकर गोविंद प्रभु I material image Gurudija Samanta Singhal because he has taken birth on the day of Lord Jagannath Rath Yatra and he is spiritual master and also our spiritual master in one sense. So His Holiness Radha Govinda Swami Goswami Maharaj, he also took this earth or he also appeared in this world on the same day. So we are very fortunate during this Rath Yatra period we could have their association directly Govinda Prabhu association. In addition to that also we are getting His Holiness Radha Goswami Maharaj appearance day recently gone. So this is also one opportunity for all of us to get the blessings of these devotees who are very much in highly elevated position. So Sadhu Sangha and a little bit introduction about Govinda Prabhu. He is a district magistrate. For those who may not be not knowing newly come Jain, so he is here in Cuttack. So since long he has helped us in spreading this Krishna consciousness. Now he is also guiding so many devotees, around 100 devotees are there. So very highly qualified persons. So Bhakti Vinod Thakur, he was judge and he was also Hare Krishna. So he also appreciated that one day the judges will come with tilak. So among us he is there. We are very fortunate and to also get inspiration by his devotion. So हम लोग जो साधु संघ के बारे में ऑलरेडी प्रभु ने बताए हैं, तो जस्ट ना गुणानु प्रभु उसका एक लाइन में बता दिए साधु संघ सर्वशास्त्र का है लव मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है। So love means a fraction of second, maybe exact sense 1/11th of second. एक सेकंड को 11 भाग कर देंगे तो एक भाग को बोलते हैं लव है। तो एक लव है मात्र साधु संघ में अगर हम लोग का ये लाइफ सर्वसिद्धि हो सकता है ह्यूमन बात, तो हम लोग तो बहुत दिन एसोसिएशन कर रहे हैं मोस्ट ऑल सम आर न्यू इट्स ओके। तो हम लोग का लाइफ तो परफेक्ट हो जाना चाहिए या हो गया होगा मोस्ट ऑल। अगर नहीं भी हुआ है तो फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्यों परफेक्ट कितना लेवल पे हुआ है और कितना लेवल में नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ। प्रभु तो कुछ बता दिए साधु संघ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग को साधु संघ में कैसे लेना पड़ेगा,
तो इसलिए लौहपत्र साधु संघ में अगर सर्वसिद्धि हो जाता है तो हम लोग क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकते हैं? हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। तो श्याम कृष्ण को क्या गिव सम आंसर और डिवोटीज? हम लोग साधु संघ इतना, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड साधु संघ में हमारा लाइफ परफेक्ट हो सकता है तो हम लोग जितना दिन एसोसिएट हुए हैं हमारा लाइफ तो परफेक्ट हो जाना चाहिए। दो जो आर फीलिंग दैट परफेक्ट हो गया इट्स ओके। अगर कोई फील करता है परफेक्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या करने से परफेक्ट हो सकता है? इसका एक स्टोरी है। एक राजा का पास में रानी बैठे हुए हैं और राजा का लाख में मतलब गोदी में एक मच्छर बैठ गया। तो होम क्लोजर एसोसिएशन ले रहा है मच्छर। अच्छा, तो प्रॉक्सिमिटी दी एसोसिएशन ऐसा नहीं है। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो दैट मीन्स इवन इफ भगवान हमारे पास में है, पास में मतलब हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते हैं। साधु हमारे पास में है। पहले हम लोग जब मंदिर जाते थे, नया नया ज्वाइन किए थे, तो प्रभु लोग को हम दर्शन करने से दूर दूर से साष्टांग प्रणाम करते थे। अभी जाने से सर भी नीचे नहीं होता है, प्रभु हरे कृष्ण हम लोग ऐसे कहते हैं ना, हरे कृष्ण कहते हैं। तो दैट मीन्स वी आर सो मच कंडीशन्ड दैट भक्त तो मिल जाते हैं, एसोसिएशन मिलता रहता है, हमको बुला बुला के एसोसिएशन दे रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्लास टाइम रखा जाएगा तो कोई जंग नहीं करता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस ही मालूम नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं। अगर हम लोग सोच रहे हैं परफेक्ट हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर वो हुए नहीं हुए तो वो गुरुदेव बताएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि परफेक्ट हो चुके हैं तो हो गया, कोई जरूरत नहीं। और कुछ एसोसिएशन का जरूरत ही नहीं है। हम अभी एसोसिएशन दे देंगे सबको। श्रील प्रभुपाद ये कमसेशन पार्क में बैठ के हरनाम संकीर्तन किए, वहाँ पे सबको आ गए, है ना, वो एसोसिएशन देते। तो इसीलिए कौन क्लू बता सकते हैं? जैसे अभी तो बताया कि एसोसिएशन मीन्स नॉट प्रॉक्सिमिटी। एसोसिएशन मीन्स हाउ वी, उसका आंसर का पहले एक हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेंगे। और कोई बताना चाहते हैं बताइएगा, अदरवाइज हम लोग भागवतम से एग्जाम्पल ले लेंगे कैसे साधु संग लेते हैं, तो उससे हमारा सर्व सिद्धि कैसे होता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है सीरियसली, इट्स वन पार्ट। हाँ, विश्वास है। एक्चुअली जो एसोसिएशन दो टाइप का होता है, वपु सेवा और वाणी सेवा। फिजिकल एसोसिएशन हम लोग लेते हैं, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन को हम सीरियसली लेते नहीं। वाणी सेवा को नहीं लेते हैं। फिजिकल एसोसिएशन करने से तो कुछ मिलेगा, इफेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा बोल के, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन लेते हैं उसको हम लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन वपु सेवा। व्हेनेवर फिजिकली योर डिवोटीज आते हैं और डिवोटीज आते हैं, उनका वपु सेवा करना है, उनका फिजिकल सर्विस करना है, उसका साथ में उनका वाणी को सीरियस लेना है। एग्जाम्पल है कैसे लिए हैं नारद मुनि भागवत में। नारद मुनि उनका प्रीवियस बात में वो क्या थे? दासी पुत्र थे। उसका प्रीवियस बात में गंधर्व थे, लेकिन वो गंधर्व थे, लेकिन वो भगवान का गाना नहीं गा के एक राजा का पास में दूसरा का ग्लोरीफाई कर दिए, तो उनको अभिशाप मिला। तो नेक्स्ट टाइम वो शूद्र का घर में पैदा हुए, दासी पुत्र हुए थे। बचपन से उनका पिताजी नहीं थे। उनका जो माँ एक बड़ा धनी के घर में सेवा करती थी, तो उसमें चतुर्मास जो आ रहा है उसमें बहुत सारा भक्ति वेदांत बहुत हाईली क्वालिफाइड डिवोटी चतुर्मास में कोई नहीं जाते हैं, एक जगह में रह के भजन कीर्तन करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग जो धनी व्यक्ति उनको बुलाए थे, वहाँ पे वो लोग बहुत 4-7 महीना रहे थे। उसी टाइम में उनका मदर जो नारद मुनि का, वो उनका सेवा करते थे। तो ये छोटा 5 साल का बच्चा, तो वो क्या किए थे, उनको बहुत सीरियसली ग्रहण किए थे। कैसे ग्रहण किए? दो साधु का साथ में रिलेशनशिप डेवलप करना है। अभी हम किसी का बात मानेंगे कब? अगर उनको तो रेस्पेक्ट तो ठीक है, रेस्पेक्ट से ऊपर में, पर किसी को प्यार करता है तो अभी भी मानेगा। हम लोग तो भक्त को देखते हैं तो मिलते हैं तो इसका इतना नहीं आता है कि ऑर्डिनरी जैसे ठीक है, अरे साधु जैसे है और दूसरा व्यक्ति सेम नहीं है।
इन वन सेंस सेम है, भगवान सब में है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट है। उसी को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। साधु को फिजिकल सेवा और वाणी को कभी सीरियसली हम नहीं लेते। तो वो जो इस केस में वो क्या हुआ ना, उनको सीरियसली लिए थे, उनका श्रवण करते थे, उनका उच्चिष्ट लेते थे, उनका परमिशन लेके। क्योंकि भक्ति में 3 शक्ति होता है, 3। भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग जानते होंगे, प्लीज टेल। हम लोग बहुत बार डिस्कस भी किया है, भक्ति में 3 शक्ति क्या है। नहीं, वो तो है भक्ति का अंग है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्ति में शक्ति 3 होता है, वो भक्त से मिलता है। बताइए, अभी बोल सकते हैं, यस प्लीज। हाँ, तो जो भक्त का चरण धूलि, ओके गुड। नेक्स्ट, चरणामृत, उनका जो पादोदक प्राणी, ओके। नेक्स्ट, उच्चिष्ट, भक्त का उच्चिष्ट। भक्त जो प्रसाद लेते हैं, जो भगवान का प्रसाद भक्त लेते हैं, उनका जो प्रसाद होता है उसको बोलते हैं महाप्रसाद, है ना। प्रसाद, महाप्रसाद, महाप्रसाद। तो प्रसाद क्या होता है, भगवान के पास में चढ़ाते हैं। तो जगन्नाथ के पास में जो चढ़ता है तो वो क्या है, प्रसाद है ना महाप्रसाद है, क्या है। भोग जो चढ़ता है उसके बाद में क्या होता है, प्रसाद या महाप्रसाद, प्रसाद। तो फिर महाप्रसाद कैसे होता है, ओके। विमला देवी के पास में जाने से उनका जो प्रसाद होता है उसको महाप्रसाद होता है। फिर भक्त जो लेते हैं उनसे अगर हम पाते हैं महाप्रसाद। तो एक बार हम लोग जगन्नाथ मंदिर में जाके अबड़ा ले रहे थे, उन्होंने प्रभु वहीं पर सब थे। तो हम जो है ना उसके इम्पोर्टेंस इतना मालूम नहीं था, बट उसी टाइम में प्रभु ने बताया कि आप मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जाते हो तो उसी के अंदर में जाकर बैठ के महाप्रसाद लेना चाहिए, और भक्त का संग में महाप्रसाद लेना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि भक्त बुला रहा है, प्रसाद हम अलग से ले लेते हैं। तो उनका जो वैसा उच्चिष्ट मिल जाता है तो वो उच्चिष्ट हमको भक्ति में शक्ति देता है। तो ये 3 चीज जो भक्ति में बढ़ता है। तो ये नारद मुनि का केस में क्या हुआ था, वो जो भक्ति वेदांत थे उनका उच्चिष्ट उनसे बहुत प्यार करते थे, तो उनका उच्चिष्ट वो प्यार से लेते थे उसे, और उनका जो इंस्ट्रक्शन था उसको सीरियसली ग्रहण करते थे इन वन सेंस। लास्ट के 4 महीने के बाद में जो जाते थे उनका पीछे भागते थे, बहुत दूर तक भागते थे। एक चतुर्मास में अगर इतना इम्पोर्टेंस है और कोई भक्त का 4 महीना भी बड़ी बात है। तो उनका पीछे में अटैचमेंट ही नहीं है हमारा। कोई भक्त का दर्शन करने के लिए, भक्त का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो ये 3 चीज तो मिलेगा नहीं, तो भक्ति में कैसे बढ़ेंगे। तो भगवान से भक्ति नहीं होता है, भक्त से भगवान का भक्ति मिलता है। भक्त का पास में भगवान का जो भक्ति का चाबी रख दिया गया है। इसीलिए तो आप लोग जानते हैं ना, दुर्वासा मुनि ये ना किसके पास में अपराध किए, अमरीश महाराज के पास में अपराध किए थे। तो उसके बाद में वहाँ भागे, वहां से भक्त के पास में अपराध करते हुए गए। कहाँ पे गए, जाके पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, वो बोले नहीं हो सकता है, उनका पीछे भाग रहा है सुदर्शन चक्र। फिर शिव जी का पास में, वो बोले मैं ये तो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका मैं भगवान विष्णु के पास नहीं हूँ। बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुदर्शन चक्र मेरा भक्त का प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी है, वो मेरा बात अभी नहीं सुनेगा। आप भक्त के पास में जाइए, जिससे आप अपराध किया है वो अगर आपको माफ कर देंगे तो वो हो जाएगा। चलिए ऑलरेडी वो तो उनका पास में गए, और तो इसलिए भक्त संग ऐसे मिलता है। लेकिन हम लोग भक्त संग को सीरियसली लेते नहीं है। भक्त संग को लेंगे, भक्त को हम सीरियसली नहीं लेते, भक्त संग को क्या लेना। भक्त को इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को नहीं मानने से ऑफेंस हो जाता है तो हम फॉल डाउन करेंगे। रिकमेंडेशन देते हैं, वो रिकमेंडेशन भी हम सीरियस नहीं लेते। हमारे टीचर कभी भी बोलते नहीं यू हैव टू डू इट, जनरली कहते इफ यू वांट यू कैन डू इट, इट इज बेटर, सो लाइक दैट। सो हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए अभी क्लियर है, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं साधु संघ में, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्लियर है अभी। तो इतना दिन हम साधु संघ में है, क्यों बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी साधु के लिए हमारा अटैचमेंट है ही नहीं। एक्चुअली एक साधु का साथ में अगर अटैचमेंट रहेगा ना, तो हम उनका कृपा से हम भक्ति मिलेगा। भक्ति ऐसे नहीं होता है, भक्ति कृपा से मिलता है, साधना से नहीं होता है। कलियुग में 99% कृपा है और 1% साधना है। इसीलिए उस दिन गोविंद गुरु का घर में प्रोग्राम में हमें गुरु ये बात बताया भी, एग्जाम्पल दिए थे। वो एग्जाम्पल हम सुने थे, लेकिन इसको ये जो लिंक था वो हमको पता नहीं था।
तो इसीलिए भक्त से वो सुनने से मिलता है। कौन कौन बोल सकते हैं? उस दिन कोई था कैसे बिना साधु संग में, मान बिना आशीर्वाद, बिना साधना से वो भगवत धाम चले गए। एक कुत्ता जो नवद्वीप से आ रहे थे, जो ये 4 महीना चतुर्मास में वो लोग आते थे, नित्यानंद लोग आते थे, केशवानंद शहर में उनका अरेंजमेंट करते थे। उनका साथ में एक कुत्ता आया था। वो कुत्ता कहाँ पे? जलेश्वर के पास में जो सुवर्णरेखा नदी है, हरे कृष्ण का, तो वहाँ पे वो क्रॉस करने के लिए नौका में वो क्रॉस नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो क्या हुआ? हरि बोल नीतीश को, तो वो क्या हुआ? वो छूट गए। लेकिन वो जब शिवानंद से पहुंचे चतुर्मास के पास में, देखे वो कुत्ता, सेम कुत्ता वहाँ पहले पहुंच चुका है। ये तो नाविक उसको क्रॉस नहीं किया, बोला कि हम कुत्ता को नहीं लेते हैं। ये बोले हम 3 टाइम पैसा देंगे एक आदमी का, फिर भी बोले नहीं लेंगे हम। लेकिन वो वहाँ पे पहुँच गए, इन लोग पहुँचने का पहले। और ये देख रहे हैं चतुर्मास वो अपना एक नारिकेल वो खा रहे हैं और इसका एक टुकड़ा उनको दे रहे हैं, तो वो खा रहे हैं और बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो। कुत्ता भी हरे कृष्ण बोल रहा है, क्योंकि चतुर्मास जो घाटी घाटी में जा रहे थे, तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, सब कोई डियर वो हरे कृष्ण कर रहे थे और अपने अपने मिल रहे थे, साधु संग कर रहे थे, है ना। तो वहाँ पे वो देख रहे थे, वो चतुर्भुज फॉर्म में हरे कृष्ण करते हुए चतुर्भुज फॉर्म विष्णु फॉर्म हो गए और भगवत धाम चले गए। वो तो कभी साधना ही नहीं किया था। कुत्ता साधना किया था? कितना हरिनाम पढ़ सकता है? लेकिन वो भगवान का कृपा से, भक्त का कृपा से, भगवान कृपा कैसे मिला वहाँ पे? बिकॉज ये शिवानंद सेन और सब डिवोटी चाहते थे कि वो जाए, लेकिन ये नाविक उसको क्रॉस नहीं किया। इनका डिजायर से वो भगवान के पास में पहुंच गए। तो शिवानंद सेन का, नित्यानंद प्रभु का कृपा से, भक्त को कृपा से ये कुत्ता भगवान के पास में पहले पहुंच गया और पहले इनसे भी पहले वो भगवत धाम चले गए। कुत्ता तो साधना नहीं किया। तो साधना करना है ऐसा नहीं, लेकिन ये साधु संग का इम्पोर्टेंस है। जैसे तो इसीलिए बोलते हैं प्रसंगम अजरम पासम आत्मान कवय विदु स्वयं साधु सुकृत मोक्षोद्धारम अवकृतम। तो ये हम लोग जो बंधन में है, इसे बंधन को कौन मुक्त कर सकता है? प्रसंगम अजरम पासम। ये जो अजरम पासम जो हमारा मटेरियल बंडे थे, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। उससे साधु सुख का कृपा होगा तभी हम ये बंडे से निकल सकते हैं, क्योंकि वी ऑल आर टाइड विथ आवर हैंड इज टाइड, आवर बॉन्डेज। जो साधु प्योर डिवोटी होता है वो उनका हाथ खुला हुआ है। जो खुला हुआ है उसका हाथ, वो हमको खुला सकते हैं, वो हमारा खोल सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा खोल नहीं सकता। ये बंधन से कोई मुक्त नहीं कर सकता है। तो साधु संग का जिससे हमको पता करता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। और क्या करना चाहिए साधु संग में? हरि कथा सुनना चाहिए, साधु संग में प्रसाद लेना चाहिए। साधु का संग एक होता है आपका भक्ति में बढ़ने के लिए आदो श्रद्धा, तो साधु संग। पहले क्या कैसे होता है? भक्ति में 9 अंग तुम बता सकते हैं, 9 अंग, 9 स्टेजेस। अंग अलग है और स्टेजेस अलग होता है। तो आदो श्रद्धा, तो साधु संग, तो भजन क्रिया, उसका अर्थ में अनर्थ निवृत्ति, उसका अर्थ में नेक्स्ट रुचि, देन आसक्ति, देन भाव, देन। तो आप देखिए साधु संग का सेकंड पॉइंट में साधु संग है, लेकिन आदु श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा कैसे आता मालूम है? बिना साधु संग में श्रद्धा कैसे होगा? कोई भक्त से हम मिले हैं तो अभी तो हमको भक्ति में कुछ इंस्पिरेशन मिलता है या आगे बढ़ना है, तो इसीलिए शुरू साधु संग है, लास्ट में भी साधु संग है। एक्चुअली प्रेम भी जो साधु संग, हाईएस्ट लेवल ऑफ साधु संग में हम रहते हैं। तो श्रद्धा बढ़ते श्रद्धा बढ़ते साधु संग में ही बढ़ता है। इसलिए भक्ति में भी बढ़ने के लिए साधु संग करना है और बिना साधु संग में नहीं हो सकता है। चैतन्य प्रभु खुद साधु संग करते थे, वो तो भगवान है। फिर वो जो 4 महीना सब आते थे ना नवद्वीप से, वो बोलते थे कि आप लोग आते रहिए। और जब 4 महीना खत्म होता है, रथ यात्रा का बाद में जो 4 महीना ये होता है ना चतुर्मास से, वहाँ पे 18 तक आते थे छोड़ने के लिए खुद। उसका बोलते हैं कि आप लोग जो मेरे लिए इतना किया, आप जो मेरे पास एसोसिएशन दिया, मेरा पास में आपका प्यार को बदल में कुछ देने के लिए कुछ है नहीं। ये सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास में है नहीं, ये शरीर खाली है,
ये शरीर ही दे सकता मैं आपको। तो जैसे कृष्ण बोले गोपी लोग को कि आप लोग हमको इतना प्यार करते हैं, उसका बदल में हमारे पास में कुछ देने के लिए है ही नहीं। इसीलिए बोलिए वो बोलते हैं गोपी भक्तु पादकमलो दास दासन दास। हम लोग तो डायरेक्ट दास होने के लिए सोचते हैं भगवान का, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भगवान का डायरेक्ट दास बनेगा वो भगवान को प्राप्त नहीं होगा, ऑलमोस्ट नील चांस। लेकिन जो भगवान का भक्त दास दासन दास, हमारा सर बोलते थे कितना बार दास लगा सकते हो। जैसे हम मेटेरियलिस्टिक के लिए ज्वाइन करते हैं ना, बीटेक एमटेक पीएचडी ऐसे कितना लगा लगते हैं, या डॉक्टर एमबीबीएस लगाते हैं, तो ये हमारा ग्लोरिफिकेशन होता है कितना हम पढ़ाई किया ना। एक्चुअली भक्ति मार्ग में हम कितना पढ़ाई किया, कितना आगे में है, वो पता चलता है कितना दास का नीचे में है। हम लोग कितना नीचे है, खाली दास नहीं, दास 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 अनुदास में आएगा। हम लोग तो सोचते हैं बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स अगर हम बड़ा हो गया तो अभी तो हमारा कुछ ये नहीं, कृपा मिलने का चांस ही नहीं है। हम सबको कृपा करेंगे अभी, है ना, लेकिन हमारे पास है ही नहीं कुछ कृपा करने के, हम क्या कृपा करेंगे। इसीलिए हम जितना नीचे रहेंगे उतना कंफर्टेबल है। आप पेड़ में चढ़ जाओगे तो नीचे गिरने का चांस है, अगर मिट्टी में रहोगे ना हम लोग तो कोई चांस नहीं गिरने का, है ना। तो दैट्स व्हाई ये जितना नीचे है, कितना दास लगा हुआ है, उतना क्वालिफिकेशन है वह भक्त का। हम लोग इसीलिए भक्त, जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते लगता है कि हम आगे बढ़ गए, तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो बड़ा बन गया, फिर हमको तो जरूरत नहीं, किसी का संग नहीं चाहिए। इसलिए तो नहीं चाहिए ना, बिकॉज हम तो संग देंगे बोल के सोच रहे हैं, लेकिन हम तो किसी का संग, हम किसी के पास में जाते हैं संग लेने के लिए नहीं जाते हैं। हम तो बोलते हैं हम संग देंगे, अभी तो हम रिसीव करने के लिए को पता है, नीड हमारे पास में फील नहीं करते हैं कि आई नीड दिस, हमारा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर जब रिक्वायरमेंट होगा कैसे होगा, उसका वैल्यू को समझना चाहिए, है ना। जो परसमणि था, परसमणि क्या है, लोहा में लगा देंगे तो चूना बन जाता है। तो ये जो सनातन गोस्वामी है ना, ये शाकर मल्लिक थे, छोटे गोस्वामी थे दबी खास, किसका थे, नवाब हुसैन शाह बेंगल, वो थ्रू ईस्टर्न रीजन का राजा थे। उनका वो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उनको क्या ये चाहिए नहीं, ये जो है ये इतना धन ये सब नहीं चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती के पास में वो लोग गए और वहाँ पर सरेंडर किए। उन्हीं का पास में एक परसमणि था, एक ब्राह्मण सुना कि सनातन गोस्वामी के पास में वैल्यूबल चीज़ है, हम वो लेने के लिए दे जाएंगे। जाके पूछे कि आपका पास में सबसे वैल्यूबल चीज़ है वो दे दीजिए। तो बोले ठीक है, वो परसमणि है, वो गार्बेज में काम डस्टबिन में पड़ा है, वहाँ से ले लो। वो लेके जा रहा है, फिर सोचा अरे ये तो इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनका पास में अगर ये इतना वैल्यूबल चीज़ ये होता तो ये डस्टबिन में क्यों डाल दिया। तो बोला नहीं, इससे कोई ज़्यादा चीज़ वैल्यूबल चीज़ होगा तो फिर रिटर्न होकर आए। तो बोले नहीं, सनातन गोस्वामी को बोले आपका पास और भी कुछ वैल्यूबल चीज़ है। तो बोलते हाँ है, तो वो दीजिए ना। तो बोले इसको फेंको जहाँ पे पड़ा था, तो वो गार्बेज में फेंक दिए। उसका बाद में बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलो मेरा प्रेम था ना हरिनाम संकीर्तन। तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं जानते। हम लोग को कितना बड़ा पोस्ट चाहिए, हमको कितना बड़ा धन चाहिए, जन चाहिए, तो उतना धनम जनम ये सब चाहिए, सुंदरी कविता वा ये सब चाहिए। लेकिन चतुर्मुख बोले न धनम न जनम न सुंदरी न कविता वा जगदीश काम है। धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, फॉलोअर। हम लोग सोचते हैं हमारे पीछे में कितना आदमी है, हमारे कुछ बोलेंगे तो 10 to 50 आदमी हमारे पीछे आ जाना चाहिए। लेकिन वो हमको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे हम स्ट्रेंथ उससे लेंगे तो भगवान के पास में सरेंडर नहीं होगा। धन जन, हाँ, तो कविता मीन्स मेटेरियल क्वालिफिकेशन, लेकिन हमको स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन चाहिए। दास 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 दासन दास होना चाहिए। ये पीएचडी कुछ काम में नहीं आएगा, ये जो नहीं आएगा। तो इसीलिए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति अहेतुकी तो ही, तो हमको ये सब नहीं चाहिए, लिबरेशन भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि मतलब जन्म का बाद जन्म दीजिए, मतलब हमको मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। तो उसका नीड्स फील करना है, इसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो वैल्यू को पता होने से हम उसका पीछे भागेंगे, है ना। तो हे वैष्णव ठाकुर हमें तुम्हारा कुकुर। अगर कोई बोलता है कुकुर, अरे डॉग क्यों होगा, हम तो गॉड होना है, हमको डॉग क्यों होना है। तो हम लोग डॉग नहीं होना चाहते, हम क्या होना चाहते हैं, गॉड बनना चाहते हैं। गॉड बन सकते हैं क्या, गॉड का पोजीशन ऑलरेडी टेकन, भगवान ऑलरेडी है, वो चेंज नहीं होंगे।
तो हम लोग गॉड नहीं मान सकते। तो इसीलिए गॉड का पास में जाके ये रहते कि हमको गॉड होना चाहिए, इसलिए हमको ये नहीं हो पाया। तो इसलिए हमको डॉग बनना पड़ेगा। किसका? वैष्णव का कुत्ता बनना पड़ेगा। वो कुत्ता बनने से दूसरा का कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा। आप बताइए कौन सर्वेंट नहीं है? मेंटल वर्ल्ड में कौन सर्वेंट नहीं है? कोई बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट से तो बेटर है कि भगवान जो सुप्रीम पर्सन है उनका सर्वेंट बनना है। प्रभुपाद बोलते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होना है, ये तो टेम्पररी है। कोई बोलता है कि हम PSU में नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे, तो UPSC देंगे हम लोग। तो इसीलिए सबसे बड़ा गवर्नमेंट है भगवान, है ना। उनका पास में हम लोग नौकरी करना चाहिए। ये छोटा मोटा नौकरी क्यों करेंगे? प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई बोला कि आप जो एयरप्लेन में जाना है, पहले तो आप पैदल में जाते थे, आजकल एरोप्लेन में जाते हो, तो एरोप्लेन में जाते हैं। बोला हम तो उनका दास है ना, भगवान का। आपका पास में उस टाइप का चीज़ है नहीं। आप जो एरोप्लेन बनाया ना, ये एल्यूमिनियम एरोप्लेन है। हमारे लिए तो गोल्डन एरोप्लेन होना चाहिए जिसमें हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑर्डिनरी पर्सन का ये दास नहीं है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो उसमें जाना चाहते हैं, उनका सर्विस था, तो कम टाइम में इतना प्रचार करना था, इसलिए वो जाते हैं। बट जरूरत पड़ने से वो फ्लाइट में जाएंगे, जरूरत पड़ने से पैदल में भी जाएंगे, तो लेकिन वो जाते थे। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? भक्त सबका इम्पोर्टेंस पता आना चाहिए। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट समबडी, कोई बोल सकता है कि साधु संघ का इम्पोर्टेंस है या नहीं है? क्या है इम्पोर्टेंस? इससे क्या मिलेगा हमको? साधु संघ करने से क्या होगा? ओके गुड। और साधु संघ में और क्या मिलेगा? हैं? ओके गुड। तो अल्टीमेटली भक्ति करने से शांति भी मिल जाएगा, तो वेरी गुड। साधु संघ एक हमारा जो भक्ति का क्रीपर है ना, उसका फेंसिंग रहता है। फेंसिंग क्या है? बाड़, क्या बोलते हैं हिंदी में? चारों तरफ में लगाते हैं बाउंड्री वाल जैसे। तो हमारा भक्ति का क्रीपर है, वो तो भक्त हस्ती, कोई भी आके उसको तोड़ सकता है। इसलिए भक्त का सामने रहेंगे तो वो क्रीपर, जो भक्ति का क्रीपर को प्रोटेक्शन देगा। लेकिन हम लोग साधु संघ को उतना नहीं सोचते कि हमारा भक्ति के लिए ये साधु संघ ही चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं साधु संघ इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिवोशन। डिवोटी एसोसिएशन द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिवोशन। भक्ति का बढ़ने के लिए एक साधु संघ में नहीं रहेंगे तो कभी बढ़ नहीं सकते। ओके, तो इसलिए हम लोग भी उसका ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो उससे ले लेंगे, थोड़े समय हमारे पास में कम हो जाता है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन का माध्यम से कुछ आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बताइए कोई क्वेश्चन है? फॉर एग्जाम्पल तो प्रभु ने ऑलरेडी दे दी है, नारद मुनि का साथ में मृगरी का। मृगरी नारद मुनि स्टोरी सुने, बोल दिए ना, सबको मालूम है नहीं मालूम है? ये तो हम रिपीट करते हैं। मृगरी, मृग अरी, मृग का अरी मीन्स, मृग का अरी मीन्स शत्रु। वो सबको मारता था, आधा मार के छोड़ता था। अच्छा मारना है तो पूरा मार दो, आधा क्यों मार रहे हो? आधा मारने से वो छटपटाएगा तो देख के खुशी लगता है। तो वो बोलते हैं कि हमारा ये कोड़ी का वृत्ति है, मेरा फैमिली का ट्रेडिशन है। नारद मुनि वहाँ जा रहे थे, देखे एक डियर ऐसे छटपटा रहा है तो जंगल में। बोला अरे कौन ये बोल के ऐसे किया है? तो मृगारी बोल निकल के आया, बोला मैं किया हूँ, मैं ही किया हूँ। मतलब अरे बेवकूफ़ इस तरह का क्यों कर रहे हो? मारना तो पूरा मार दो। ऐसे नहीं, ऐसे करने से मेरे को मजा आता है। बहुत लोग है ना दूसरा को तड़पाते हैं, तड़पाने से तड़प के मारना है ना, तो मारने से मजा आता है उनको। तो वो क्या बोलेंगे लास्ट नेक्स्ट टाइम में? ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस। तड़प करके दूसरे को मार रहे तो ऑक्टोपस बनाइए। तो ये बोले अरे ये जो पाप कर रहे हो तो उसका पाप का भाग कौन लेगा? आपका फैमिली? नहीं, वो जैसे वाल्मीकि रत्नाकर का था, तो ये बोला नहीं जाके पूछ के आओ, फिर पूछ के आए तो बोला नहीं वो तो कोई नहीं लेंगे, तो फिर इसको छोड़ दो। मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से? तो बोलता है कि ठीक है आप गांव का बाहर में कुड़िया बना के, कॉटेज बना के वहाँ पर हरिनाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलता हरिनाम करने से कैसे खाना मिलेगा? अरे मैं तो बोल रहा हूँ, वो पूछा नहीं, लेकिन हमारा मन में आता है ना, वो पूछा नहीं।
उनको तो पूरा माने गुरुदेव से पूरा सरेंडर है, वो पूछा ही नहीं है। हम पूछते ना हरिनाम करने से कैसे होगा, तो बोलते कि तुम डाउट मत करो, तुम जाके हरिनाम करते रहो। तो वो हरिनाम करते रहे और उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे गाँव का सब चारों तरफ से लोग को पता चल गया कि ब्रिगारी भक्त बन गया है, ब्रिगारी भक्त बन गया। तो भक्त के पास में देखेंगे कैसे भक्त बना, चलो देखने के लिए। तो जाने से भक्त के पास में क्या, कुछ तो खाली हाथ में नहीं जाएंगे ना, तो कुछ कोई फ्रूट्स लेके, कोई ग्रेन्स दाल ये सब पल्सेस लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा जितना खाना आएगा, तुम्हारा जितना जरूरत है उससे जितना ज़्यादा होगा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कुछ अपना पास में नहीं रखना। तो वो उसको सबको बना के प्रसाद चढ़ा के सबको खिलाते थे और अपना जरूरत करता था, है ना। नेक्स्ट टाइम जब आए नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ में, तो दूर से देख रहे हैं ब्रिगारी कैसे है देखने के लिए। तो ब्रिगारी दूर से देखते हैं कि गुरुदेव आ गए, तो प्रणाम करेंगे, शास्त्र प्रणाम, लेकिन सामने में चीटी का एंट का वो है चल रहा है, तो इसीलिए उसको उसका उत्तर ये जाता है ऊपर का अपर गारमेंट उसको निकाल के साथ में प्रणाम कर रहे हैं। तो पर्वत मुनि बोले नारद मुनि यू आर परसमणि, यू कैन चेंज दिस ब्रिगारी, जैसे लोग को ब्रिगारी को भक्त बना दिया आपने। तो उस टाइप का गुरु थे, उस टाइप का शिष्य भी थे, है ना। तो ये ब्रिगारी का जो स्टोरी है, तो हम लोग ब्रिगारी से ये सीख सकते हैं, है ना, एसोसिएशन। तो ब्रिगारी का स्टोरी तो उन्होंने बताया। तो ब्रिगारी क्या किया था, हमारे साथ बोलते हैं कि हम लोग हमारा इतना अटैचमेंट रहता है। रावण का 10 हेड था, एक सर्प काट देगा फिर दूसरा आके जुड़ जाता है, तीसरा काट देगा तो और एक आके जुड़ जाता है ना। तो ब्रिगारी को बोला गया कि आप पहले आपका जो धनुष तीर को तोड़ दो, वो ऐसे तोड़ दिया, उसका बाद में जाके भजन किया, हमारा अनर्थ छोड़ दिया वो। लेकिन हम लोग का तो अनर्थ पूरा रहता है, हम तो सुनते हैं फिर अनर्थ को छोड़ते नहीं हैं। तो अनर्थ को तो एंकर जैसे बोलता है, एंकर, है ना। तो इसलिए ये अनर्थ को निवृत्ति करना है, संरक्षण में रहने से अनर्थ को निवृत्ति करना है, संरक्षण करना है, ये दोनों हो जाएगा उसमें। ओके, so next we will stop here. Before that, if anybody has some questions or discussion, please ask. और इससे प्रॉब्लम होता है, एवरी टाइम वी शुड हैव सम एसोसिएशन एंड क्योंकि भक्ति में बढ़ने के लिए हमको भक्ति में ये एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको करना है। अगर किसी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्लियर है। मोबाइल मीडिया में आजकल कर रहे हैं क्लास, मोबाइल मीडिया उसको 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट तक मतलब ठीक है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। एक मिनट, हाँ क्या क्वेश्चन था? आजकल सभी मोबाइल में क्लास कर रहे हैं, हाँ उसका ड्यूरेशन इतना कम है क्योंकि बहुत सारा क्लास रहता है, इसलिए उसको कम करना पड़ेगा। तो फिजिकली करने के लिए बोला जाए ना, फिजिकली कर सकते हैं। हाँ, तो आइए ना फिजिकली। आप तो टाइम नहीं होगा तो फिजिकली कैसे होगा? यू हैव टू एवरी संडे, आज प्रभु बता रहे थे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, तो जो कोई भी धर्म में रहता है, कोई बात नहीं, उनका संडे में क्या काम है? चर्च में जाना है। हम लोग का संडे कुछ करते हैं, तो हमारा तो घर का काम रहता है, हम मोबाइल में क्यों, फिर इसीलिए तो करना पड़ता है, मोबाइल में इसीलिए करना पड़ता है, कोई आ नहीं सकता है। नहीं आना पड़ेगा ना, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। आइए, मोस्ट वेलकम। पहले मोबाइल तो अच्छा चीज़ नहीं है, वो तो कौन बोला अच्छा चीज़ है? वो तो हरे कृष्ण मंत्र चांटी करते हुए और प्रसाद उनको भोग आता था, प्रसाद लेते थे, वो हो गया, वो भक्त बन के, उनका वाइफ जाके जो कॉटेज में रहते थे वो भक्त बन के। इसलिए तो नेक्स्ट टाइम जो आधा मार के छोड़ते थे तो वो तो चिट्ठी को भी नहीं माना जा रहे थे, तो इसीलिए तो भक्त का वही क्वालिटी होता है ना, पर दुखे दुखी, तो इसीलिए तो वो उनका ऑटोमेटिकली वो क्वालिटी है, इसलिए तो भक्त सबका पीछे भागता है। भक्त का पीछे कोई भागता नहीं, भक्त सबका पीछे भागता है, क्योंकि वो जानता है कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं, वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं, तो सब कोई कैसे उधर आए ऐसे। चैतन्य महाप्रभु इज गॉड, लॉर्ड हिमसेल्फ,
उनका नवद्वीप में 1486 में अपीयरेंस हुआ था। ही स्टेड इन दिस वर्ल्ड फॉर 48 years. Out of 48 years, 24 years, 50% time he was in Navadvip. Rest 24 years he came to Puri, but initially for 6 years he went to South India tour and Vrindavan. Last 18 years he continuously stayed in Puri. तो पहला पार्ट को आदि लीला बोलते हैं, नेक्स्ट 6 साल को मध्य लीला उनका बोलते जो लीला फर्स्ट टाइम से लीला हुआ है, और लास्ट 18 इयर्स को अंत लीला बोलते हैं। तो भगवान एक मंदिर का पास में, जगन्नाथ मंदिर का पास में गंभीरा मठ में रहते थे। 6 फुट का रूम है, ये 7 फुट का व्यक्ति है भगवान, वो इसमें रहते थे। वैराग्य भाव, ये वैराग्य भाव सिखाने के लिए हमारे पास में, हमको सिखाने के लिए जो कृष्ण बोले थे कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो उसको कैसे करना है खुद कृष्ण सिखा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए वो वैराग्य भाव में राजधानी का मूड में सेपरेशन में यहाँ आए थे, तो इसलिए वो भी एसोसिएशन करते हैं। वो सांग पांग पाश्चात्य लेकर आए, मतलब उनका साथ में सांग से उनका जो है साथ में नृत्येंद्र प्रभु और अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, तो ये सब गदाधर पंडित, ये सब साथ में रहते थे, कोई अकेला नहीं रहते थे। भगवान खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, सांग पांग से पार्षद लेके वो आए हैं और रहते थे भी साथ में, मतलब मैक्सिमम टाइम संग में रहते थे। तो संग में रहकर क्या सुनते थे, हरि कथा, साधु संग हरि कथा यही मात्र चाहिए। संसार जड़ित कौन वस्तु नहीं, ये चतना लोग बोल रहे हैं, संसार की मटेरियल को क्रॉस करने के लिए साधु संग में हरि कथा सुनना है। इसलिए एवरी डे यूज्ड टू गो टू टोटा गोपीनाथ, अगर गदाधर पंडित वाले ही इज द इनकार्नेशन ऑफ राधा रानी, एंड ही यूज्ड टू स्टडी भागवतम एंड दैट टू मेनली प्रहलाद चरित एंड ध्रुव चरित। भगवान भी भक्त का चरित सुनते थे, भगवान अपना चरित नहीं सुनते थे, तो वो पढ़ते थे, ये सुनते थे। और गदाधर पंडित उसको पढ़ते पढ़ते उसका आंख से जो आंसू निकलता था, वो भागवतम बिक गया और उसको कुछ रहा भी नहीं, ऐसे हो गया। तो चतनापुर एवरी डे आफ्टरनून वाज गोइंग टू टोटा गोपीनाथ एंड हियरिंग दिस भागवत कथा इज अबाउट डिवोटीज, प्रहलाद एंड भक्त मैंने ध्रुव चरित, बार बार उसी को सुनते थे, वो कुछ सुनते नहीं थे। तो भक्त का इंपॉर्टेंस क्या है, भगवान खुद दिखा दिया, इसीलिए भगवान भक्त अवतार में आया है। भगवान ये कलयुग में भगवान अपना अवतार में अपना नहीं है डायरेक्टली, भक्त अवतार में आया है, इसीलिए। थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन। सर किती लागला आपण तो पाखे तुमचं सगळं असतं। थँक यू फॉर कमिंग। Now we'll tell प्रभु आपके जगन्नाथ गाना गाएंगे, हैं? हो गए तो फिर प्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं, आए ना सर है जगन्नाथ जी का चल रहा है तो गाएंगे। वेरी हार्ट टचिंग है। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशंस बट by the mercy of all the devotees, whatever I heard from my spiritual master and other devotees, I know all the devotees try to explain. If you could have touched the heart of the other devotee, it is their qualifications, no qualification of mine. Thank you. Shila Prabhupada ki jai, Shila Gurudev ki jai. Hare Krishna.